Hello students, welcome back to our English grammar class. Well, in our previous video we have done object. What is an object? What are the types of object, that is direct and indirect object, and that how you will find direct object and indirect object. By asking question word what we will find direct object, and by asking question word whom we will find indirect object. So today we will do another part of sentence, that is types. How many types of sentence are there? What are those types of sentence? We will know that. So basically types. There are basically four types of sentences. Okay, there are basically four types of sentence. First one is assertive sentence or declarative. Assertive sentences are also called as declarative sentences. Second one is interrogative sentences. Third one is imperative sentences. And fourth one is exclamatory sentences. Basically there are four types of sentences, that is assertive and declarative, interrogative, imperative and exclamatory. So जो ये चार टाइप है बेटा, अब हम इन चारों को बिल्कुल अलग अलग तरीके से पर्टिकुलर में पढ़ेंगे कि व्हाट आर दीज एंड हाउ यू विल नो दैट दीज आर विच टाइप ऑफ दिस सेंटेंस इज. फर्स्ट वन assertive और declarative. What is an assertive और declarative sentence? Assertive और declarative जो sentence है बेटा, they basically state something. What they do? They state something. मतलब वो कोई चीज बताते हैं. कोई भी चीज नॉर्मली कोई भी स्टेटमेंट है वो उस चीज को बताते हैं. जैसे कि शेखर इज अ गुड बॉय. शेखर इज अ गुड बॉय. तो जो एजर्टिव सेंटेंस है उसमें हमने एग्जांपल दिया दैट शेखर इज अ गुड बॉय. अभी हमें सिंपली एक चीज बता रहा है कि जो शेखर है वो एक अच्छा लड़का है. ओके, सो दिस इज एन एजर्टिव सेंटेंस. नाउ assertive sentence are further divided into two types. This is further divided into two types. What are they? Affirmative and negative sentences. Okay, assertive or declarative sentence are further divided into affirmative sentence and negative sentence. अब ये क्या है? You can call affirmative sentence as also positive sentence. I hope now you will understand that what are affirmative sentence. Affirmative sentence positive होते हैं और second type होता है negative sentence. ये दोनों type है assertive and declarative. अब हमारा ये जो sentence है, शेखर is a good boy. शेखर जो है एक अच्छा लड़का है. We know that this is an assertive sentence or declarative sentence. But another, how you will know that it is an assertive sentence है, but आप ये कैसे बताएंगे that it is an affirmative और negative? Well, positive sentence basically हमें पॉजिटिव चीज उसकी बताएगा, पॉजिटिव वे में आंसर करेगा. पॉजिटिव मतलब यस में आंसर करेगा. तो यहाँ पे आंसर क्या है? इज शेखर इज गुड बॉय? यस, ही इज अ गुड बॉय. शेखर इज अ गुड बॉय. अगर मैं कहूँ शेखर इज नॉट अ गुड बॉय, शेखर इज नॉट अ गुड बॉय. अब यहाँ पे क्या है? शेखर एक अच्छा लड़का नहीं है. तो यहाँ पे हमें क्या हाईलाइट हो रहा है? नॉट. ठीक है, यहाँ पे हमें हाईलाइट कर रहा है नॉट. तो जो ये नॉट है इससे हमें क्या पता चल रहा है? दैट दिस इज अ नेगेटिव सेंटेंस. ओके, और यहाँ पर एक पॉजिटिव वे में आंसर था, तो ये था हमारा पॉजिटिव सेंटेंस. ओके, और एफर्मेटिव सेंटेंस. एजर्टिव सेंटेंसेस क्या कहते हैं? ये सिंपली एक बात बताते हैं और ये फर्दर दो पार्ट में डिवाइडेड होते हैं, एफर्मेटिव और पॉजिटिव एंड नेगेटिव. एफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं जो पॉजिटिव वे में आंसर करते हैं, पॉजिटिव वे में आंसर को देते हैं या कोई स्टेटमेंट बताते हैं, जैसे शेखर इज अ गुड बॉय. एंड जब नेगेटिव सेंटेंस हो तो वो हमें एक नेगेटिव वे में वो बात बताएगा, वो एक नो या नॉट के साथ आंसर बताएगा, दैट इज शेखर इज नॉट अ गुड बॉय. दैट इज अ नेगेटिव सेंटेंस. प्लस एजर्टिव सेंटेंस जो है ये एंड किसके साथ होंगे? एक फुल स्टॉप के साथ. ओके, ये एजर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस विल एंड विद द फुल स्टॉप.
That is our assertive and declarative sentence. I hope you understand this. Okay, let's move to our next type of sentences, and that is interrogative sentence. Now, interrogative sentence, what are these? These basically ask questions. Interrogative sentence basically ask question. ये question पूछते हैं. And now, question. Now question can be further divided into two types. That is yes or no question and WH family questions. Okay? जो questions है interrogative means asking questions, और जो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में क्वेश्चंस होते हैं वो दो तरह से पूछे जाते हैं. कोई भी क्वेश्चन जो है वो दो तरीके से जो क्वेश्चंस हैं वो दो वे में पूछे जाते हैं, यस और नो क्वेश्चंस एंड WH फैमिली. जो यस और नो क्वेश्चन है, पहला यस और नो क्वेश्चन का देखिए. इन दीज क्वेश्चंस वी फ्रेम द क्वेश्चन बाय पुटिंग हेल्पिंग वर्ब फर्स्ट. जैसे विल यू प्ले विथ मी, विल यू प्ले विथ मी. तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन वर्ड कोई भी व्हाट वेयर नहीं है, हमने डायरेक्टली एक हेल्पिंग वर्ब यूज की है विल. तो हमने इसको पहले प्लेस किया विल और फिर हमारा सब्जेक्ट आया. तो जो भी हमारा क्वेश्चन विल इज बेसिकली अ मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब. तो ये जो विल है हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है यहाँ पर, और ये पहले आया है सब्जेक्ट से पहले. तो ये इसका जो आंसर हम करेंगे, लाइक सिंपली समवन आस्क यू दैट विल यू प्ले विद मी, तो हाउ यू विल आंसर, यस और नो. यस आई विल प्ले विद यू, और नो आई विल नॉट प्ले विद यू. तो इनका जो आंसर है वो हमें यस या नो में मिल जाता है, इसलिए इन्हें यस नो क्वेश्चंस कहते हैं जो कि हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं. नेक्स्ट है हमारा WH फैमिली क्वेश्चन. Which game shall we play? Which game shall we play? Now here question word start with which. So this is W word. The questions which start with words which start from W, that is which, what, where, when, those are who. These are WH family. H से H word how. ओके, हाउ मच, हाउ मैनी. तो इनसे जो क्वेश्चन वर्ड स्टार्ट होते हैं वो होते हैं WH फैमिली के. ओके, दीज आर WH फैमिली क्वेश्चंस. बेसिकली इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. क्वेश्चंस दो तरीके से पूछे जाते हैं, यस और नो क्वेश्चन, जो कि हमारे स्टार्ट होते हैं हेल्पिंग वर्ब से. हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से जब पहले आ जाए तो वो हमारा क्वेश्चन फ्रेम कर देती है, और वो यस और नो क्वेश्चन होते हैं. दूसरा होता है WH फैमिली क्वेश्चन, जिसमें हमारा क्वेश्चन जो है वो WH वर्ड से स्टार्ट होता है, WH फैमिली वर्ड से स्टार्ट होता है, जैसे which, what, where, when, who, या फिर हाउ, हाउ मैनी, हाउ मच, हाउ मैनी टाइम्स, जो भी इनसे स्टार्ट होते हैं. तो ये क्वेश्चन होते हैं WH फैमिली के. प्लस इंटेरोगेटिव सेंटेंस ऑलवेज विल एंड विद क्वेश्चन मार्क. इंटेरोगेटिव सेंटेंस हमेशा एक क्वेश्चन मार्क के साथ एंड होंगे. जब भी किसी सेंटेंस में एंड में क्वेश्चन मार्क है, दैट मीन्स इट इज एन इंटेरोगेटिव सेंटेंस. सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस. नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट टाइप ऑफ सेंटेंस, एंड दैट इज imperative sentence. Now imperative sentences. In imperative sentences, what we basically have, they express what? Command or advise or request, etc. Okay? जो हमारे इम्पेरेटिव सेंटेंस होते हैं वो हमारा जो भी सेंटेंस होगा उसके थ्रू या तो कोई कमांड एक्सप्रेस करेंगे, कोई ऑर्डर एक्सप्रेस करेंगे, या फिर एडवाइस, या फिर रिक्वेस्ट, या कोई इसी तरह की और चीज. जैसे कि आई विल से स्टैंड अप. स्टैंड अप. नाउ इट इज बेसिकली एन ऑर्डर और अ कमांड. खड़े हो जाओ. सो दिस इज आवर कमांड. एडवाइस, please close the window. Now someone is requesting you to close the window. So ये एक request है. Then advise,
exercise regularly. Now someone is simply advising you to do exercise regularly. तो ये हमारे sentences हमें क्या express कर रहे हैं कि कोई हमें command कर रहा है stand up, या फिर कोई request कर रहा है please close the window, या फिर कोई हमें advise कर रहा है do exercise regularly. तो जिन सेंटेंस में हमें ये चीजें पता चलती हैं कमांड, एडवाइस या रिक्वेस्ट, वो हमारे होते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंसेस. वन थिंग अबाउट दीज आर दे विल एंड विद फुल स्टॉप आल्सो, बट these sentences will not have a subject. इन sentences में आपको subject नहीं दिया होगा. Why? Because जो यहाँ पे subject है वो implied है, वो माना हुआ है कि हमने accept कर रखा है. वो subject क्या होगा हमारा? You. ये हमारा क्या है? Subject. ये हमने subject and predicate chapter में भी क्या था? In imperative sentences we have subject as you. ठीक है? ये जो हमारे सेंटेंस हैं ये इम्पेरेटिव टाइप्स हैं और इनमें हमेशा जो सब्जेक्ट होगा वो यू होगा. ये हम मान के चलते हैं, ये हमें इनमें दिया नहीं होगा. आई एम टेलिंग स्टैंड अप. टू हुम आई एम टेलिंग दिस? यू स्टैंड अप. प्लीज क्लोज द विंडो. यू प्लीज क्लोज द विंडो. डू एक्सरसाइज रेगुलरली मीन्स यू डू एक्सरसाइज रेगुलरली. सो हेयर जो सब्जेक्ट है वो हमेशा यू ही होगा इम्पेरेटिव सेंटेंस में. ओके, सो आवर नेक्स्ट टाइप इज exclamatory sentences. Well, exclamatory sentences basically show exclamation. These sentences show exclamation by how? By expressing our feelings or emotions. So, exclamatory sentence, what they do? They express our feelings or emotions which we show, which came automatically. ओके, हम कोई भी चीज़ देखते हैं अचानक से और हम उससे इतने ज़्यादा प्रभावित होते हैं या दुखी होते हैं, खुश होते हैं और वो ऑटोमेटिकली हमारे मुंह से निकल जाता है. जैसे कि हाउ ग्रेट अकबर वॉज. हाउ ग्रेट अकबर वॉज. कितना महान था अकबर. देन व्हाट अ शेम. कितनी शर्मिंदगी की बात है. या फिर व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन. सीन है, इट इज सो ब्यूटीफुल. ओके, तो ये जो सेंटेंसेस हैं ये बेसिकली क्या एक्सप्रेस कर रहे हैं? हमारी फीलिंग या इमोशंस. किसी भी चीज़ को देख के, किसी के बारे में सुन के अचानक से जो शब्द निकलते हैं वो, इनका कोई प्रॉपर स्ट्रक्चर नहीं होता. दे डोंट फॉलो दिस स्ट्रक्चर ऑफ अ सेंटेंस दैट इज सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब. दे हैव देयर ओन स्ट्रक्चर. ओके, सो नाउ लाइक दिस सेंटेंस स्टार्ट विथ हाउ, व्हाट, सॉरी, these sentences started with how, what. Okay, so that doesn't mean कि ये interrogative sentence है. how, what आया है starting में, पर इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि ये interrogative sentence है. क्यों? क्योंकि अगर how interrogative sentence में हमारे अगर how, what आता है तो उनके बाद helping verb आती है और फिर subject आता है which makes them question. यहाँ पर हमारे ऐसा कोई structure नहीं आया. हमारे how, what के बाद कोई helping verb नहीं आई है, इसलिए ये हमारा interrogative sentence नहीं है बल्कि exclamatory sentence है. अगर हाउ और व्हाट के बाद हमारे कोई हेल्पिंग वर्ब आती फिर सब्जेक्ट आता तब ये हमारा क्वेश्चन होता है, अदरवाइज नो. प्लस वन थिंग इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट अबाउट एक्सक्लेमेटरी दैट दे विल ऑलवेज एंड विद एक्सक्लेमेशन मार्क. ये हमेशा एंड किससे होंगे? एक्सक्लेमेशन मार्क से. ओके, सो दे एक्सप्रेस आवर फीलिंग्स एंड इमोशंस. सो व्हाट वी हैव डन इन 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंस, दैट एजर्टिव और डिक्लेरेटिव, जो हमें बेसिकली कोई बात बताते हैं एक जनरल वे में, और वो 2 तरह के होते हैं, एफर्मेटिव और पॉजिटिव. एफर्मेटिव और कैन बी कॉल्ड पॉजिटिव एंड नेगेटिव. एफर्मेटिव सेंटेंस बेसिकली कोई आंसर में यस में देते हैं, एक पॉजिटिव वे में देते हैं, और जो नेगेटिव है वो बेसिकली एक सेंटेंस को नेगेटिव या नॉट के साथ बताते हैं हमें. दूसरा इंटेरोगेटिव सेंटेंस, जो हमें क्वेश्चंस पूछते हैं. क्वेश्चंस 2 तरह के होते हैं, दैट इज यस और नो क्वेश्चंस एंड WH फैमिली क्वेश्चंस. Yes or yes and no questions basically start with helping verb, and WH family questions start with what, where. WH family what, that is the what, where, when, who, how much, how many, how.
इम्पेरेटिव सेंटेंस हमें सेंटेंस के थ्रू हमें कमांड, एडवाइस या फिर कोई रिक्वेस्ट एक्सप्रेस करते हैं, प्लस फुल स्टॉप से एंड होते हैं, और उनके अंदर सब्जेक्ट जो है वो हमेशा यू होता है, वो इम्प्लाइड होता है, वो दिया हुआ नहीं होता सब्जेक्ट, हमें हम मानकर चलते हैं कि जो सब्जेक्ट है वो यू ही है। देन देयर इज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जो हमें फीलिंग्स और जो हमारी फीलिंग्स और इमोशंस को एक्सप्रेस करते हैं, और वो हमेशा एंड होते हैं एक्सक्लेमेशन मार्क के साथ, और उनका कोई प्रॉपर स्ट्रक्चर नहीं होता सेंटेंस वाला। उसमें बेसिकली सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट जो हमारा एक स्ट्रक्चर है सेंटेंस का वो फॉलो नहीं होता है। दे हैव देयर ओन स्ट्रक्चर एंड एंड विद एन एक्सक्लेमेशन मार्क। I hope you understand this chapter. Okay beta, thank you.